everyone. Today we will discuss about class 8 science chapter 9 reproduction in animals. Before this we will discuss about reproduction, okay, as a types of reproduction, sexual reproduction, okay, fertilization, okay, internal fertilization, external fertilization, puberty, okay, how reproduction in animals and male reproductive system, female reproductive system, okay, what it is fertilization, okay, embryonic development, zygote formation, okay, and in sexual reproduction, okay, there will be a when the male gametes and female gametes, okay, fuse together, okay, to form zygote. This process is known as a fertilization. The male gametes is sperm and female gamete is known as a egg or ovum. So now today we will discuss about, okay, as a test tube baby, oviporous, asexual reproduction, as a binary fission, birding, what are the gender issues. So today we will discuss about these topics. Now if a woman is unable to have a babies, okay, due to block of fallopian tube, if fallopian tube are blocked, then a woman cannot gives a baby. So that's why there is a technique, okay, in which a matured ova is collected from woman's ovaries. Okay, from woman's ovaries, doctor take mature ova, okay, and by using a special syringe, okay, and semen from the father. From father take a semen from fathers, and from women's, okay, take matured ova, okay, and then we kept a fertilization, okay, in doctor's prescription. Then after fertilization, embryo is formed, and then the embryo put on the woman's womb. Okay, now once again see, okay, doctor takes mature ovum from the women's and semen from the parents. Okay, then from this take fertilization, okay, and then if embryo is formed, then doctor put in the woman's womb, okay, then embryo gets implanted and develops into a baby, and that baby, that is known as a test tube baby. In first time in 1978, okay, it should be happen, okay, and the first test tube baby name is Louis Brown. Is it clear? The first test tube baby is Louis Brown. Now next we will discuss viviparous. What are the viviparous animals? Okay, so animals that give birth to fully formed young ones, okay, and oviparous, animals that lay eggs. Such type of animals who gives eggs, then from egg they a baby will be formed. But in viviparous, directly a baby will be formed. You can understand, ओ दिया है ना, वो एक शेप में है. अब ऐसे जो ओविपोरस होंगे वो एक पहले देंगे, ठीक है ना, एंड सेकेंड वन विल बी अ बेबी वंस. Is it clear? Now, as a in oviparous, we will discuss about a hen. Okay, in oviparous animal, the process of embryonic development is different from human beings. Okay, in oviparous animal में जो fertilization जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग में कुछ और होते हैं ना, फिर इनमें क्या, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं hen का, ओके, देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट्स divides rapidly and comes down the oviduct in the case of human being. ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जब जाइगोट फर्टिलाइजेशन डिवाइड होते थे ना, वो कहाँ जाते थे, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में है. बट इसमें ऐसा नहीं है. तो इसमें क्या होता है, फिर इट्स कम डाउन एंड मेनी लेयर्स क्या होते हैं, जैसे वो जाइगोट जो फॉर्म होते हैं तो क्या होते हैं, कई सारे लेयर उसके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं. फिर इन प्रेजेंस ऑफ हैंड के जो हम बात कर रहे हैं, फिर एंड जो लेयर चलते वो क्या करते हैं, उसको जाइगोट को प्रोटेक्ट करते हैं फिर, एंड एक हार्ड सरफेस आ जाता है, ठीक है ना. एंड वंस द हार्ड सरफेस इज फॉर्म्ड द एम्ब्रियो, ओके, क्या होता है, जो एम्ब्रियो के ऊपर चारों तरफ क्या होता है, एक हार्ड सरफेस फॉर्म हो जाते हैं. फिर इज इट क्लियर? देन जो hen होती है वो lays eggs and sits on the eggs, keep the war for the development of the chick. होता क्या है, जैसे जब hen ना
जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है ना। एंड आफ्टर द समटाइम्स अ लेयर विल बी फॉर्म ऑन द जाइगोट। जाइगोट पे और क्या होता है, एक लेयर फॉर्म आ जाता है जो हार्ड सेल होते हैं, ठीक है ना। अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एम्ब्रियो में। जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन हैन क्या करती है, ले एग्स, ओके। एंड देन क्या करती है, उसके ऊपर वो बैठ जाते हो, क्या करती है, उसको वार्म करती है फिर, सो दैट अ चिक विल बी आउट फ्रॉम द एग्स। सो दिस इज द animals that lay eggs, how their baby will be formed. Next one is a metamorphosis. Okay, there are some animals, okay, which gives a babies, okay, in their own kinds. Means कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जब वो बेबी का फॉर्म करते हैं ना, देन उनकी जो बेबी क्या होती है, उस ऑर्गेनिज्म के जैसे ही दिखती है, ठीक है ना। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं उनके जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं वो, तो उनका जो रिप्रोडक्शन फर्स्ट जब बेबी फॉर्म होता है, क्या होता है, वो वैसे नहीं होते, फिर उनके ऑर्गेनिज्म के वैसे शेप में नहीं होते। जैसे ह्यूमन बीइंग से हो गए, उनके जो बेबी होते हैं सेम वैसे ही दिखते हैं ना। बट एक फ्रॉग हो गया, अगर उसका जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या होता है, पहले फर्स्ट एग के फॉर्म में आते हैं, फिर वो टेडपोल में हो गए, फिर आपका फ्रॉग में, फिर वो एट लास्ट में एडल्ट के फॉर्म में आते हैं। तो यानी कि स्टार्टिंग में जो होता है उसका शेप वो डिफरेंट होते हैं फिर। सो व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस होने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ वैसे ही दिखते हैं वो, क्लियर। बट जैसे ह्यूमन बीइंग के जो हो गए आपके, उसमें जो बेबी हो गए वो क्या होते हैं, फिर जो बेबी होता है ना डायरेक्ट पेरेंट्स के साथ, 2 legs होंगे, नोज होंगे, सब कुछ वैसे दिखते हैं। बट इन फ्रॉग हो गए, ठीक है ना, मॉस्किटो में हो गए, इसमें क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है वैसे ही सेम टू सेम उनका जो पेरेंट्स के जैसा वो नहीं दिखते हैं, फिर उनका जो शेप क्या होता है, अलग होता है। वो क्या होता है, पहले एक के फॉर्म में, फिर टैडपोल, फिर एडल्ट के फॉर्म में। अगर हम फ्रॉग का देखते हैं तो नाउ इन फ्रॉग में क्या होता है, फर्स्ट फ्रॉग क्या होता है, हमने पढ़ रखा था ऑलरेडी। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है, फ्रॉग, ठीक है ना। वाटर में सपोज करो एक मेल फीमेल फ्रॉग है, एक दिया, ठीक है ना। वहां क्या हुआ, एक मेल फॉर्म अपने स्पर्म छोड़ देते हैं, तो क्या होता है वहां पे फॉर्मेस फर्टिलाइजेशन होते हैं, फिर क्या होते हैं वो एक के फॉर्म में आ जाते हैं, फिर एम्ब्रियो के फॉर्म में ऐसे चले जाते हैं, फिर टेडपोल बन जाते हैं, फिर टेडपोल से वो एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर। ऐसे सेम आपको मॉस्किटो का भी है। मॉस्किटो में क्या होते हैं, एग, देन लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट। इसमें क्या होता है, एक चेंजेस क्या क्या होते हैं मॉस्किटो में, फर्स्ट एक फॉर्मेशन होते हैं, देन लार्वा, लार्वा टू प्यूपा, प्यूपा कन्वर्टेड इनटू एन एडल्ट मॉस्किटो। So once again metamorphosis, the transformation of a larva, when larva change into an adult through a series of changes, so that is known as a metamorphosis. Next is a asexual reproduction. Okay, now in asexual reproduction is the formation of new individual involving a single parent without the formation and fusion of gametes. and without the formation and fusion of gamete का इसमें यूज नहीं होता है, बट एक इंडिविजुअल से क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट फॉर्म हो जाते हैं फिर। ओके, as but here we will discuss about some example of, and the asexual reproduction is okay happen in the unicellular and some simple multicellular organism. asexual reproduction जो होते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो देते हैं, एंड कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर हो गए, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन बर्डिंग आपके बुक में भी ये दिया क्लास 8 में, बाइनरी फिजन द बर्डिंग एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इन बाइनरी फिजन में होता क्या है, ठीक है ना। एक हम अमीबा ले लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, इसमें एक सिंगल सेल अमीबा है आपका, ठीक है ना। देन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये कन्वर्ट यानी सेल डिवीजन होते हैं इसमें, तो इट इज द डिवीजन ऑफ एन एडल्ट पेरेंट बॉडी इनटू टू न्यू इंडिविजुअल। एक जो होता है इंडिविजुअल क्या होता है, टू न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल से अमीबा ले लिया, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियर फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जैसे डिवीजन होता जाता है ना, तो उसके जो अमीबा के जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे यानी कि डिवाइड होते रहते हैं। फिर यहाँ देखो एक सिंगल है ना अमीबा, देन आफ्टर थोड़ा इसका ये साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता रहता है ये, देन आफ्टर क्या होते हैं, दोनों अलग अलग कन्वर्ट न्यू पैरेंट में आ जाते हैं, फिर दो नए नए हमें दिखते हैं यहाँ पे ये। नेक्स्ट आपका है बर्डिंग।
बर्डिंग में क्या होता है, हम देखते हैं एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा देख तो ऐसे ही रहेगा एक प्लांट, यहाँ आप सपोज कर छोटा से कैसे बर्ड आएगा, ठीक है ना, फिर बर्ड धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ होता जाएगा धीरे धीरे। वेन इट शुड बी फुली ग्रोथ है, देन इट शुड बी यहाँ से डिटैच अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है फिर। ठीक है ना। देन जो हाइड्रा का रिप्रोडक्शन होता है इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग प्रोसेस है आपका, एंड अमीबा इन बाइनरी फ्यूजन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज जेंडर इश्यू एंड द मिथ। कुछ ऐसे जेंडर इश्यू हैं कि अभी तो सपोज कर हम 21st सेंचुरी में है ना, बट नाउ देर विल बी लैक ऑफ एजुकेशन। कुछ ऐसे भी पर्सन है ना जिनके अंदर प्रॉब्लम आती है कि हमारे घर में जो गर्ल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जबकि ये सब क्या है, बहुत ही ओल्ड जो इलिटरेट लोग हैं ना उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमें इससे दूर करना है ना, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एजुकेट, हमें एजुकेट होना है और जो आसपास के लोग उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है फिर। ओके, लोग क्या करते हैं, अभी मान लो बेबी अभी फेटस में रहते हैं ना, हमने पढ़ा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स में, तभी क्या करते हैं उनका हम उनको चेक कराते हैं लोग, बॉय और गर्ल। ओके, देन इफ गर्ल, उनको क्या करते हैं, कुछ तो ऐसे पर्सन है जो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, बट अब जो गवर्नमेंट है ना वो भी क्या एक स्ट्रिक्ट लॉ अप्लाई की है, स्ट्रिक्ट लॉ है, हमें उसको क्या एक अप्लाई भी करना पड़ेगा, अप्लाई होते भी हैं, बट डिसाइड दिस सम पर्सन क्या करते हैं उसकी वो चेक कराते हैं वो। एंड कुछ तो कहीं कहीं पे क्या होता है ना, बस जो मदर्स होती है ना उनके ऊपर क्या लगाते हैं वो ब्लेम लगाते हैं, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, गर्ल्स हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। जो गर्ल्स चाहे बॉय डिपेंड अपॉन द फादर, फादर के जो स्पर्म होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वो गर्ल्स होगी या बॉय होंगे फिर। ओके, सो दिस टाइप के जो इश्यूज भी है ना ये हमें दूर करने पड़ेंगे। दिस कैन बी ओनली बी डिस्पेल्ड बाय प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन टू पीपल। हमें ये सब कैसे दूर कर सकते हैं, जब हम क्या पर्सन को ओके जब हम स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। ओके, सो आई थिंक टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट। फर्स्ट क्या था, टेस्ट ट्यूब बेबी। 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन थे हमारे पास। विविपोरस, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, बर्थ टू यंग वन को जो देते हैं बर्थ। ओविपोरस, एनिमल्स दैट ले एग्स। व्हाट आर द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस। when transformation will be happen when larva convert into adult, it should be a metamorphosis। frog में हमने देखा एक tadpole adult हो गया, मॉस्किटो में भी था हमारे पास क्या थे, एक larva, pupa and the adult। in asexual reproduction, binary fission, budding, binary fission, अमीबा न्यूक्लियस क्या होते हैं, कन्वर्ट इनटू टू में कन्वर्ट हो गया इसके न्यूक्लियस। बर्डिंग में हाइड्रा क्या होता है, सपोज कर ऐसे हाइड्रा है, एक थोड़ा सा आउटग्रोथ हुआ है, धीरे धीरे क्या व्हेन इट शुड बी मैच्योर, ओके, देन इट शुड डिटेक्ट फ्रॉम हियर एंड अनदर हाइड्रा विल बी फॉर्म। जेंडर इश्यू जो प्रॉब्लम आती थी गर्ल्स और बॉय का, ओके, उसको क्या उन्होंने हमें दूर करना चाहिए, इट शुड बी रिमूव ओनली विद द हेल्प ऑफ अ बेसिक एजुकेशन। ओके, थैंक यू।